UPA government led by Prime Minister Narendra Modi is now in a visible hurry. Within a fortnight, a big reform push from labour to petroleum to coal. What all is happening in the government, how deep is the reform intent, and what is going to be the likely impact certainly needs a scrutiny. And who better to answer a few questions? Mr. Dharmendra Pradhan, Minister of State Independent Charge for Petroleum and Natural Gas. Thank you so much, Mr. Pradhan, for speaking to us on NDTV. You have withdrawn your control from the diesel prices at a time when the global oil prices are falling. Global oil prices, we all know, are quite volatile. Like they are falling today, they may start increasing as well. Now, diesel is a commodity which is not just economically sensitive, but it is politically sensitive too. Will you intervene when the prices start rising? Let's see what we have done today. Let's appreciate that. Market is appreciating. Everybody is happy. Sensex is at a high. Taking the advantage of the international pricing price regime, we took this decision. When we took this decision at government end, it's a well-thought decision. Both the things cannot run parallelly. At one end, you have to be pragmatic. You have to be. We want to put the economy on track, and we want to create a robust economy. We want to create a confidence among the investor. Simultaneously, we cannot depend on sloganeering. Our primary concern, how to protect the interest of common man, how to protect the interest of Aam Aadmi, how to protect the interest of the poorest of the poor. To protect that interest, you don't have to be populist. We have an opportunity today due to international price declining trend. We took the advantage with around 3 rupees price reduction. We link the diesel to the market force. Let's see. Primary concern is how to sustain the protection policy of government to poor people. Simultaneously, how to put economy on track. So it's a well-thought decision. I think market will cooperate, people will cooperate, and let us see. It is a well-thought decision. बहुत ही आपने सबके बारे में सोचा, इंडस्ट्री के बारे में, कंज्यूमर के बारे में. बट जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर डीजल डीकंट्रोल पहले भी हुआ था, पिछली सरकार जब पहले एनडीए ने किया था, यूपीए को उसको रिवर्स करना पड़ा क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दे स्टार्टेड राइजिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, अगर फिर से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? क्या उस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फिर कोई प्लान लेकर आएंगे? डू यू हैव थॉट ऑफ दैट थिंग एज वेल? देखो, निर्णय होता है हिना जी. पिछले बार अटल जी ने वो निर्णय किया था. जिन लोगों ने उस निर्णय को बदला इस बहाने पे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पेट्रोलियम प्राइस की, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, वो बढ़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अगर आज इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस घट रही है, क्या इसकी सुविधा उपभोक्ताओं को नहीं मिलनी चाहिए? आगे बढ़ेगा, इसलिए आज हम उपभोक्ताओं को उसकी सुविधा, उसकी रियायत पास ऑन नहीं करनी चाहिए. और कुल मिला के ये सारा विषय की जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में, विश्व की जियोपॉलिटिक्स परिवर्तित हो रहा है. ऑयल मार्केट, ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की संख्या बढ़ रही है. डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के तहत हमारी प्रोक्योरमेंट जोन बढ़ रहे हैं. उसमें से विश्व भर में एक प्रकार से एक स्टेबिलिटी आई है. उसकी फायदा भारत की नीति निर्धारक गरीबों के हित में नहीं लेना चाहिए. इसी आशंका में कि आगे बढ़ जाएगा, ये तो निर्णय नहीं होती है ना. इसको तो गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता है ना. जब मौका मिलता है युद्ध में, रणनीति में ये पहले रहती है, जब मौका मिले उसकी सुविधा लो. आगे का क्या होगा इसके बारे में भी सोचो. लेकिन आज प्राइमरीली एक बहुत बड़ा कंसर्न थी, क्या भारत में जो नई आशा जगी है, जो नई उम्मीद जगी है, क्या ये सिर्फ स्लोगन रहेगा या लोग हमारे विरोधी जो 60 साल राज किए, ये प्रश्न पूछना शुरू किए 60 दिनों के अंदर, कहां गए वो आपके वादे? जब हम आज परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम उसको निर्णय तक लेके जा रहे हैं और डिसाइसिव निर्णय तक लेके जा रहे हैं, आम जनता और व्यवसायिक जगत दोनों उसके साथ खड़े हुए दिखता है. आपने बोला कि आज अगर मौका है, why not incentivize it? Why not make use of that opportunity that you have? Global oil prices are falling. You know, do you have a backup plan? आपने कुछ
प्लान किया है, व्हाट इफ ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से डिमांड बहुत नहीं है ग्लोबल कंट्रीज में, ग्लोबल वर्ल्ड में सप्लाई बहुत ज्यादा है ओपेक कंट्रीज से भी, इफ एट एनी से 6 months from now अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, then do you have some kind of a plan? Has the government thought of something कि हम इस तरह से इसको partially कंट्रोल करना शुरू कर देंगे? क्या ये मीडिया के अंदर अपने रणनीति को बताने के लिए होती है? क्या मीडिया कंजम्पशन के लिए बताने के लिए होते हैं? ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही लोगों की, आम जन की अर्थनैतिक, देखिए 2 चीजों में माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट है। इस उनके शासन में जो पहली बार जिम्मेवारी संभाले, उनकी पहला मंतव्य क्या था कि मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा। दिस इज ए वेलफेयर स्टेट, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज द सेंटर स्टेज ऑफ आवर गवर्नेंस। ये करते हुए ये क्या स्लोगन से होने वाला है, या क्या नारा से होने वाला है, या क्या सिर्फ भाषणों से होने वाला है? उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आज हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक मौका देती है गरीबों को कुछ सुविधा देने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए, उसकी फायदा हमने लिया है। जो मूल विषय आप उठा रहे हो, आगे क्या होगा? आगे भी गरीबों की हितों को ध्यान दिया जाएगा, अर्थनीति को तबाह ना करते हुए। मतलब कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इसको ट्वीक कर सकते हैं। मैं इस विषय पे अड़िग हूँ, गरीबों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा, उन पे बोझा नहीं बढ़ाया जाएगा, अर्थनीति को तबाह ना करते हुए। बिल्कुल। OMCs की बात करें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिस हैज कम एज अ बिग बूम। उनके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं दे विल आल्सो कम डाउन बिकॉज सब्सिडी बर्डन बहुत ज्यादा उनके ऊपर था। लेकिन जब पेट्रोल डीकंट्रोल हुआ था 2012 में, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आए थे मार्केट में। डू यू थिंक नाउ डीजल डीकंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, कंपटीशन यहाँ पर आएगा, या फिर जो अभी सेटअप बना हुआ है बस वही रहेगा? देखो, ये तो जब हम इसको मार्केट लिंक करते हैं, बाजार के साथ जोड़ते हैं, बाजार की अपने आप की डायनेमिक्स रहती है, अपने आप की स्वभाव रहती है, चरित्र रहती है। उसमें अनुमान ये आया है, ये जो पुराने अनुभव भी ये दिखने को मिला है, उपभोक्ताओं को सुविधा मिली है। कंज्यूमर इज एट ए बार्गेनिंग पॉइंट। कंज्यूमर को अच्छा मिला है, सुसम दर पे मिल सकता है, सुलभ दर पे मिल सकता है, सुव्यवस्थित मिल सकता है। ये सारे कैरेक्टर कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अनुमान करता हूं, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो 10 साल पहले इस फील्ड में काम करना शुरू किए थे, जो मार्केट की ट्रेंड है, जो उछाल है, उसमें से जो 2 लोग थे उतने ही नहीं, और भी 2-4 प्लेयर आ सकते हैं। आप रिलायंस और एसआर की बात कर रहे हैं? अभी तो रिलायंस और एसआर 2 ही उसमें ऑयल मार्केटिंग के काम पे थे। मेरे को लगता है सेल भी कुछ मात्रा में सदर्न इंडिया में था, और भी कुछ टोटल की भी कुछ प्लानिंग सुनने को आ रहा है, और भी कुछ लोग हैं। और जितने कंपटीशन आएगी, जितने गुणवत्ता वाले लोग आएंगे, उतने ही उपभोक्ताओं को अच्छे मार्जिन पे, सस्ते दरों पे, बढ़िया सर्विस देते हुए ग्राहकों को सेवा करेंगे। उसमें भारत में आम जन के लिए सुविधा होगा। Diesel, after you took this decision of diesel deregulation, before that for 3 fortnights in a row, diesel became profitable. Your subsidy has been wiped out. If you could give us an estimate for the entire year, how much of the subsidy burden will come down because of this diesel deregulation that has happened? देखिए, इसको पूरा हम तो दूसरे क्वार्टर अभी पूरा किए, तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही हम लोग हैं, और उसी में से ये निर्णय हमको करना पड़ा है। जो प्रारंभिक एक आकलन आई है, पिछले साल 1,40,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी की बोझ थी भारत की ट्रेजरी पे। टोटल सब्सिडी पे पेट्रोलियम सेक्टर पे, जिसमें डीजल बड़ा भारी था। अभी इस बार लगता है कि ये मात्रा घट के 75,000 करोड़ रुपया तक पहुंचेगी। ये एक प्रारंभिक अनुमान है। And if we talk about LPG and kerosene, they are also subsidized. Now this has been a tried and tested way. डीजल की सब्सिडी जिस तरह से 50 पैसा इंक्रीमेंटल हाई करने की वजह से डीजल सब्सिडी बिल्कुल वाइप आउट हो गई है, प्रॉफिटेबल बन गया है। Do you have a similar plan of action to reduce the subsidy burden for LPG and kerosene as well? देखो हिना जी, दोनों सारे चीजों को आप लोग एक दृष्टि से देखते हो। जब हम लोगों की सरकार आई, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तावित किया सदनों में, लोकसभा में, और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार संकेत दिए थे कि देखो हमारी सेंटर स्टेज पे गरीब है, आम आदमी है, इसको हम बोझ नहीं बढ़ाएंगे, उसकी जिंदगी में हम कुछ कष्ट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये करते हुए
सब्सिडी बर्डन को भी घटाएंगे। सब्सिडी बर्डन को घटाना कैसे आप घटाएंगे उसको? इनोवेटिव तरीका हो सकता है। सारा विषय हमने बजट भाषण में भी कहा है, जिसके तहत हमने डीबीटीएल लाया। डीबीटीएल क्या है? डीबीटीएल के माध्यम से डुप्लीकेशन, डाइवर्जन, ये सब घटेगी। इसको हम भी एक रास्ता मानते हैं सब्सिडी को कम करने के लिए, सब्सिडी की बोझा घटाते हुए, आम आदमी जो बेनिफिशियरी है उसको हर्ट ना करते हुए। तो आप डीबीटीएल को लेके आपके, अगर हम इस साल के टारगेट्स की बात करें, व्हाट आर योर टारगेट्स? हाउ मच डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सेव थ्रू दिस डीबीटीएल रीलॉन्च? जो है ना, जो आप लोगों को सारे चीजों में कमा, पुष्ट, टाइमलाइन, ये मीडिया की एक व्यग्रता है, मैं उसको सम्मान करता हूं। इसलिए है क्योंकि अभी तक काफी कुछ अनाउंस हुआ था बट इन प्रैक्टिस नहीं आया था। सो दैट्स व्हाई विद द न्यू गवर्नमेंट कमिंग इन एवरीबॉडी इज इन अ हरी। जिन्होंने लोगों को निराश किया, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, उसकी उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं। उनको तो उत्तर, उनको जवाब मई महीने में देश की जनता ने दिया है। अगर मैं मेरे निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी की विजन को नीचे ले जाता हूं, यही उसकी रणनीति है। और बाकी हमने डीबीटीएल के अंदर, जब मैंने संसद में पिछले बार उत्तर दिया था, मेरे कांग्रेसी मित्रों को अच्छा नहीं लगा था। मैं सैद्धांतिक रूप में उसको कहा ये एक अच्छी योजना था, लेकिन आप उसमें एक राजनीतिक हित रख के, एक जल्दबाजी में उसको आपने शुरू किया था। कंज्यूमर बेस डिजिटलाइज होनी चाहिए, उनकी एक आइडेंटिटी नंबर होनी चाहिए। बैंक खाता सबकी है, जिनकी नहीं थी, प्रधानमंत्री जी की पहल पे, वित्त विभाग की पहल पे जनधन योजना के माध्यम से खाता खुल रहा है। आपको मालूम है 6 करोड़ नई खाता खुल गई 2-3 महीने में। नई खाता खुलेगी, उनकी आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी नंबर होगी यूआईडी में जिसकी है, कोई बाध्यता नहीं है। ये जब सिनर्जी होते होते ये 2-3 महीना लगेगा। इसीलिए हमने उसको कहा कि 10 नवंबर से शुरू होके जनवरी तक, ये 3 महीने में इसको पूरा एक सिनर्जी करना, इसको एक एकत्रित कर देना, जिसमें से, और उसके बाद भी जो लोग रह जाएंगे, जिनके पास खाता नहीं रहेगा, जिनके पास यूआईडी की नंबर नहीं रहेगी, उनको भी लेते हुए हम डीबीटीएल स्कीम को एक एम्बिशियस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, यह हमारी विश्वास है। और रफली अगर हम इस साल की बात करें तो गवर्नमेंट कितना सेव कर पाएगी? कुछ एक नंबर? मैं उस मायाजाल में जाना नहीं चाहता। जो हम करेंगे उतना आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो मतलब जो 12 सिलेंडर, सब्सिडाइज सिलेंडर्स अभी दिए जा रहे हैं, उनको आप कम नहीं करेंगे? उनको आप तो फिलहाल उनको हम 12 ही रखेंगे, लेकिन उसको टारगेट बेस अगर कर देंगे, टारगेट बेस कर देंगे, सबको मालूम है क्या स्थिति है। और ये बात अभी टाइम आई है सोचने के लिए, चर्चा करने के लिए। क्या एक जो क्रय शक्ति जिनकी है, दोज हु हैव पेइंग कैपेसिटी, दोज हु कैन बाय फ्रॉम मार्केट द नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी, should not they opt for the non subsidized LPG? But how will you identify those particular people? It's a point to, देखिए ये परिवर्तन नीति से नहीं होती है, परिवर्तन नियत से होती है। क्या आप और हम, जिनकी क्षमता है नॉन सब्सिडाइज रेट में खरीदने के लिए एलपीजी, ये नहीं खरीदनी चाहिए? क्या सिर्फ ये प्रवचन देने से होगा? इसको निभाने से होगा। ये भी एक विषय आई है। वहां से लेके जो नीडी लोग हैं, जिनको नहीं मिला है अभी तक, जो ग्रे मार्केट से खरीदते हैं, क्या उनको नहीं पहुंचनी चाहिए? इसलिए ये एक विषय पब्लिक डोमेन में डिबेट शुरू हो गई है, और हमने उसको स्ट्रीमलाइन करने की काम भी शुरू कर दिया है। और केरोसिन को लेकर आप कैसे करने वाले हैं? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी थी सब्सिडी रैशनलाइजेशन की बजट में। उसमें भी हमने प्रदेशों के साथ बातचीत करके हम ये पहल किए हैं, जिनको जरूरतमंद उनको देनी चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा है उनको जोड़नी चाहिए। लेकिन जो केरोसिन ग्रे मार्केट को चली जाती है, उसकी क्या करें? इसमें राज्यों की मदद चाहिए, राज्यों की भागीदारी चाहिए। उसमें से जो बचत होगी, क्या उसको हम दोनों मिलके कुछ शेयर कर सकते हैं? ये सारा विषय के ऑप्शन हम खुले मन पे राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें राज्यों को भी सुविधा होगी, राज्यों की अर्थनीति में भी थोड़ा मदद हो सकती है, और भारत सरकार की बोझा घट सकती है। इसको करते हुए जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको मिट्टी की तेल चाहिए, दोज हु आर genuine customer of K oil, they should not be debarred, they should not be cut up from the marketing link. And will you also be now re-looking at the subsidy sharing mechanism with all these companies? Let us see, all this new scenario will compel all of us, to my ministry, to PSUs, to finance ministry, to re-look the issue
at a phrase, certainly subsidy share has to be rescheduled, restructured in the present changing scenario. Has the government started working? We have on already it? started discussion. Any with, plan that you have in mind? again, why you are getting into the deadline? When with a 4 months track record, without any deadline, we have created so much confidence. Let's wait. Let's have on the faith on the government. Let's now also talk about your second big decision of the gas price hike. You know, this was a big contentious issue. Everybody was waiting for this to happen. But, you know, many are saying at this point in time that the hike is not what was expected. It's slightly lower than what it should have been. आपका क्या कहना है? क्या इस देश के संसाधनों को हम औने पौने दाम पे गरीबों की पहुंच से बाहर कर देते, आम आदमी की पहुंच से बाहर कर देते? विश्व में ऐसे कभी हुई है? कोई भी एक देश हमको बताइए जहां यहाँ की उत्पादित संसाधन वेलहेड की प्राइस इंपोर्टेड प्राइस की लगभग समान हो जाए? ऐसा कहीं विश्व में कई देश आपने देखा? और आप हमको भारत में इसकी अपेक्षा करते हो? पिछले सरकार ने तो हमारे मित्रों ने लगभग दुगनी दाम से ज्यादा $4.2 से लेके उसको 8.4 एक छल है. दैट्स अ camouflage, दैट्स अ अंडरप्ले. When you calculate the gas on NCV, original price, Net calorific value. Net calorific value, if you count through net NCV, the Rangarajan formula prescribed $9.45. It's not 8.4. So why everybody had 8.4? Why? That's the story. They have to answer. It's not public domain. I am not coming out with something from my own pocket. रंगराजन साहब ने जो फॉर्मूला निकाला ये जीसीबी में कैलकुलेशन किया जब भारतीय बाजार सेटल हुई है एनसीबी में 4.2 एनसीबी. हमने जो अभी प्राइस रिजिम लेके आया 5.61 ये एनसीबी. अगर एनसीबी में उसको जिस फॉर्मूले को उन्होंने लाया उस फॉर्मूले में अगर उसको हम कैलकुलेट एनसीबी में करते हैं इट इज $9.45. तो ये कहीं हुई है क्या? इसीलिए ये जो गैस प्राइसिंग के ऊपर जो एक बहुचर्चित निर्णय हमने तो देश के संसाधनों को बचाया और वित्त मंत्री जी की जो बयान आई है हमको प्रॉफिट शब्द में आपत्ति नहीं है. व्यवसाय प्रॉफिट सेंट्रिक होनी चाहिए. प्रॉफिट कोई व्यक्ति की नहीं होती है. जब प्रॉफिट होती है प्रॉफिट में सरकार की भी हिस्सेदारी है, जो उद्योग धंधे करने वाले उनकी भी हिस्सेदारी है. ये हिस्सेदारी में आम जन भी लिंक्ड है. रोजगार बढ़ती है, टैक्स आती है, ये सारे को फायदा मिलती है. लेकिन विंडफॉल प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए. पिछले सरकारों की जो नैसर्गिक संसाधनों की बांटने की प्रक्रिया थी वो नेचुरल गैस हो, मिनरल रिसोर्स हो या कोयला हो, जो उन्होंने गड़बड़ी करके गए, जो उन्होंने गलत काम किया उसकी सजा तो उनको भुगतना पड़ा. अर्थनीति को बहुत चोट पहुंचा के हो गए, उद्योग धंधे को बहुत चोट पहुंचा के गए, निवेशकों को बड़ा निराश करके गए. इसके सुधार के काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से शुरू हो गई है. तो रंगराजन फॉर्मूला आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत था. आपने रंगराजन फॉर्मूला को अब टोटली डंप कर दिया है. हैव यू कम आउट विद अ न्यू फॉर्मूला या फिर आपने उसी में कुछ चेंजेस करे? उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, मैं इस प्रकार की रंगराजन साहब एक विद्वान व्यक्ति थे. मैं उनको गलत था, टोटल डंप ये शब्दावली आपके मेरे नहीं है. लेकिन मैं बिल्कुल नम्रता के साथ कहूं जिस तरीके से वो कैलकुलेशन था ये भारत की उद्योग धंधे आम आदमी की पक्ष में नहीं था. क्या हम जापान की जो एक जापान में 1 ग्राम भी गैस उत्पादित नहीं होती है. जापान विश्व की सबसे बड़ा खपत का देश है, कंज्यूमिंग स्टेट है. उस कंज्यूमिंग स्टेट की जो डिलीवरेबल प्राइस है एलएनजी की उसको हम भारत के बाजार के साथ क्यों लिंक करेंगे? बिल्कुल. जो दुनिया में और 2 मंडी थे, विशेष करके रशिया की मंडी में $4 में पर MMBTU गैस मिलती है. उसको क्यों रंगराजन साहब ने हिसाब नहीं किया था? वेलहेड से हब तक जो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन फीस लगती थी उसको क्यों जोड़ा? भारत के कुएं की आप हिसाब करोगे, आप यूरोप के कुएं के हिसाब नहीं करोगे, अमेरिका के कुएं के हिसाब नहीं करोगे, वहां की मंडियों के हिसाब करोगे. ये तो गलत कैलकुलेशन था. रॉन्ग कैलकुलेशन वाज चूजन. बिल्कुल, हमने भी हेनरी हब को लिया, हमने भी एनबीपी को लिया,
लेकिन हब प्राइस नहीं। उस मंडियों में, उस सारे हब्स में वहां की वेलहेड प्राइस क्या हो सकती है, जो एस्टैब्लिश कैलकुलेशन है उसी को हमने सहारा लिया। विश्व की 4 मंडी जिसमें 60% गैस स्ट्रक्चर मार्केट के नाते आती है और बिक्री होती है, उन्हीं की हम वार्षिक व्यवसाय की आकार और किस विनिमय मुद्रा पे बिक्री होती है उसकी एवरेज लेके हमने भारत की मुद्रा निकाली। Okay. Last time when you deferred this decision on the gas price hike, when it was supposed to be taken before July, you said that you are going to look at, you're going to have a balanced approach. You'll think about the producers as well as the consumers. Now, producers certainly are going to benefit by this, but what about power sector and the fertilizer sector? They will have some kind of a subsidy burden increasing now? नहीं, ये तो स्वाभाविक है ना। फर्टिलाइजर जिस प्रकार से हमारे देश में चलती है, इसमें तो विश्व भर के लोगों की आपत्ति है। लेकिन हमने अभी भी जो WTO में जो बात आई थी, फर्टिलाइजर से लेके फूड सब्सिडी तक विषय एक ही प्रकार की है। हमारे देश में किसानों को, हमारे देश में कृषि में संबंध रखने वाले लोगों को क्या रियायत दिया जाएगा, कितना सब्सिडी दिया जाएगा, यह हमारी सरकार की नीति है। हम अभी भी फर्टिलाइजर सेक्टर में सब्सिडी देते थे। जिस ढंग जितने भी रेट पे उत्पादित हो यूरिया या फर्टिलाइजर, उसके ऊपर हम एक सब्सिडी देते थे। उसी में भी ये जुड़ जाएगा। तो मतलब अब तो और बढ़ जाएगा। तो व्हाट आर द प्लान्स टू रिड्यूस, क्योंकि यहाँ से सब्सिडी कम होकर ये तो फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में बढ़ जाएगा। क्या हम गरीबों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं? बट हाउ इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू बैलेंस दैट आउट? बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं। जब हमारी उत्पादन बढ़ेगी गैस की, रॉयल्टी बढ़ेगी, प्रॉफिट पेट्रोलियम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगी, क्या हम सरकार फायदे में नहीं रहेगा? इज दिस हाइक दैट यू हैव गिवन, इज इट इनफ टू इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री? बिल्कुल। जिस ढंग से पिछले 3-4 दिन में व्यवसाय जगत में उत्साह दिखने को मिलती है, जो रिएक्शन दिखने को मिलती है, उसमें हम पूरा आश्वस्त हैं। हमारे निर्णय को देश ने आम आदमी से लेकर व्यवसाय जगत तक उसको सही ढंग से लिया है, उसमें लोग उत्साहित हैं। And what about discoveries in the deep sea and ultra deep sea? Would there be any premium of any kind? हमने पूरा स्पष्टता के साथ कहा कि 1 नवंबर 2014 के बाद जो न्यू डिस्कवरी इस प्रकार के क्षेत्र में आएगी, जो those who are in deep water, those who are in high temperature water, they have to given a special premium, analyzing all the scientific data through DGH, case to case basis. So you will be now empowering DGH as well? Certainly. बिना DGH को एम्पावर करते हुए, बिना DGH को और मजबूत करते हुए ये काम शायद संभव नहीं होगा। ONGC की अगर स्पेसिफिकली बात करें, पहले भी बात हुई है, इट इज नॉट एफिशिएंट, प्रोडक्शन इज नॉट द वे इट शुड बी। व्हाट विल यू डू नाउ टू मेक ONGC आल्सो एफिशिएंट? देखिए, आई नॉट यूज द वर्ड इनएफिशिएंट, इट हैज टू बी मोर एफिशिएंट। दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग द थिंग। You see the glass half full all the time. This is a very positive thinking. देखो, अगर ONGC ना रहता, क्या देश में आज भी 80% उत्पादन ONGC से ही होती है? क्या हम ONGC को काटघरे में खड़ा कर देंगे? लेकिन ONGC के अंदर जो कमियां हैं, मैनेजमेंट में, निर्णय करने में, प्रोक्योरमेंट में, ओवरऑल उसके बिजनेस प्लान को और मजबूती आए, एक उस व्यवसायिक संगठन अपने तरीके से चलती है। लेकिन उस व्यवसायिक संगठन की इक्विटी की ट्रस्टी के नाते, भारत की आम जन की ओर से ट्रस्टी के नाते हमारे विभाग की जवाबदेही बनती है इसको कड़ी निगरानी करना, उसको मॉनिटरिंग करना, उनको और एफिशिएंट बनाना, उनको क्या दिक्कत रह रही है उनमें मदद करना। जैसे हमने एक दूसरी महत्वपूर्ण निर्णय 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में पारित किया। 10 सूत्री समाधान हमने निकाला, 10 पॉइंट रिफॉर्म्स हमने किया और अर्ली मोनेटाइजेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। जो वर्तमान में PSC सब काम कर रही है, सोफिल्स काम कर रहे, उनमें से कुछ छोटे बॉटलनेक रहते थे जो भी ओवरऑल इंपैक्ट करता था प्रोडक्शन में। ONGC जैसे संगठन, ऑयल इंडिया जैसे संगठन उसकी सबसे ज्यादा लाभार्थी होंगे। ये सारे छोटे रिफॉर्म्स को भी हमने, इंटरनल रिफॉर्म्स को भी हमने शुरू किया है, जो ONGC को प्रोडक्शन बढ़ाने में मददगार होगी।
And what about the disinvestment in ONGC? Somehow disinvestment kick-started with a lot of steam, but वो कहीं stall हो गया, sale भी रुक गया, Coal India, NHPC, ONGC, सबका cabinet approval तो आ गया था, but now ONGC, do you think it will go through because the markets have jumped up again? चाहिए, आप लोगों को ब्रेकिंग लाइन चाहिए, आप लोग माने अर्थनीति की गति को भी आप मीडिया की खबर बनाना चाहते हो। ये सारे की अपनी अपनी प्रक्रिया है, सारे की अपनी अपनी टाइमलाइन है, वर्ल्ड एस्टेब्लिश टाइमलाइन है। आपको जरूरत है कि शाम तक उसको, जैसे आज सुबह निर्णय हुआ, परसों शाम तक उसको बाजार में बिक्री हो जाए, ऐसे नहीं होती है। मैं बहुत जानकार व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने इस प्रकार के प्रश्न से जब मैंने अभ्यास किया, मैंने जानकार लोगों से बात किया, अर्थशास्त्रियों से बातचीत किया, ये टीवी की तरह ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती है। सरकार जो निर्णय किया है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस है उसी के टाइमलाइन को हम मेंटेन कर रहे हैं। तो मतलब इस साल this year is your target for ONGC disinvestment, and it will start because now the markets have bounced back. ONGC stock is also reacting very positively to the reforms announced. If you want to have an answer categorically, I can say politely yes. Great. All right. What about the NELP? When is that next round coming into action now? देखिए, we have experience of 9 round of NELP. We have a big experience. Some good experiences are there. Some new ideas came up out of this 9 NELP. Some limitations we also marked out. We can find out what are the limitations. ये सारे को देखते हुए जब हम NELP 10 पे जाएंगे, जो 3 हमको समझ में 3 प्रकार की इसकी दिशा है। एक व्यक्ति भारत में निवेश करने के लिए देशी भारतीय व्यवसायी हो या ऑयल मेजर हो, वो क्यों आएगा? जब हम उनको पता चलेगा क्या उसमें क्या संसाधन है, क्या रिसोर्स है, उसके लिए साइंटिफिक डाटा इज द फर्स्ट प्रीकंडीशन. माय डीजीएस इज ऑन जॉब हाउ टू क्रिएट as much as possible scientific seismic data before NELP 10. उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें some administrative issues are there, some economic issues are there. How do we share the thing? ये सारा विषय पे हम पब्लिक डोमेन में इंटरनली चर्चा जारी रखे हैं. जब हम NELP 10 लेके आएंगे, इट विल बी अ प्रोग्रेसिव वन, इट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, इट विल बी वर्ल्ड स्टैंडर्ड. तब जाके निवेश ऑल मेजर्स शुड कम टू इंडिया फॉर एक्सप्लोरेशन. I will ask you one more question, but again you will say आपको timeline चाहिए, पर फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूंगी, do you have a timeline in mind? आप कब तक उसको launch कर पाएंगे? As early as possible. As early as possible. We're on job with all the 3 sectors, all the 3 aspects of the issue. We'll come out with a new strategy as early as possible. All right. And one last question now. We saw these big reforms coming on one single day. 3 big decisions: diesel deregulation, gas price hike, and also a diesel price cut. First time in so many years. What is that next big reform going to be from your ministry now? Inaji, let me add you another thing. The way I have mentioned the 10-point early monetization decision also, this is the 4 big thing. 4 big ticket reform in this PNG sector. This is Modi formula. This is called governance. This is called minimum government, maximum governance. This is Modi style. So we are going to hear from you very soon. Is that Certainly, what you're saying? Lot of things has to be followed up. We are on the job. We have to take this country to a greater height. Already Prime Minister Modi has created confidence within the market, within the common man of the country. Overall, world is expecting India in a bigger way in the leadership of Prime Minister Modi. We have to fulfill that. We have to catch up that aspiration. Thank you, Mr. Pradhan. Thank you so much for speaking with us.